Let me share my screen, guys. Okay, guys. So I have just uploaded, AI prompt memory as along with, whatever the revision that we have did for system prompt, human prompt, and AI prompt. Okay. So now, guys, today class will be related to, local setup. Okay. So right now we are working on, Google Colab, but since we are approaching to the, uh, 1 month completion, okay, because we have total 24, total 36 classes, okay. So we have 12 classes reaches, okay. So usually we have around 7 class. Now we will be today on the 8th class, we will be doing the local setup, how we can do the local setup, and the remaining 4 class will be based on RAG, okay, that is called retrieval augmented generation. That will be the first project of your the first agent. You need to see that how you can design the RAG pipeline, okay, on any data. A data can be private, a data can be a public. A private data can be प्राइवेट डेटा जो आपका एक्सेल में भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, डेटाबेस में भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है. So let's see how we can just create the local setup. Okay. So local setup करने के लिए सबसे important चीज़ है कि let me another person in. Okay. Okay. So now guys, what you can do for local setup, क्योंकि अगर हमें चलाना है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो we have to create one folder. Okay. So you can just create any working folder जो आपके पास working folder है. Okay. So for my working folder, let me just use AI for everyone. Yeah. So I have a working folder here. So what I will do, I will just, you know, open a command prompt here. Okay. CMD. Okay. So first thing, guys, you have to check, Python version, is there or not. Okay. So let me just pull the screen. So I can just check Python, version. Okay. So here you can see I have a Python version 3.9.30. Okay. You can take any Python version which will be compatible to you or something. So guys, before we jumping, to create any project, you have to create, the first thing that is called virtual environment. So when you try to create a virtual environment, Python -mvenv and then env. Okay. So this is the command to create a virtual environment. And what is a virtual environment? So virtual environment एक ऐसा environment है guys कि जो भी आप packages install करोगे, इस folder में आपके सारे packages installed हो जाएंगे. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लो कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो लैंचेन के, और लैंचेन के अलग अलग वर्जन्स यूज़ होने वाले हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसीलिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत होती, ताकि हमारे जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं पिप कमांड के थ्रू, वो सारे के सारे एक फोल्डर के अंदर पैकेज रहें. अगर हमें दूसरा प्रोजेक्ट करना है तो उस फोल्डर के अंदर फिर से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे और फिर से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे. सो ये हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया. It will take some time and then finally it will be active. ओके. सो अगर आप जब जैसे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लोगे, तो फिर यहाँ पे देखो एक env नाम का फोल्डर बन जाएगा. अब इसे वर्चुअल को हमें एक्टिवेट करना है. एक्टिवेट कैसे करते हैं? env/script/activate.bat. ये एक्टिवेट क्यों करते हैं? ताकि हम कोई भी पैकेज डाउनलोड करें तो वो इस env फोल्डर के अंदर हो. जैसे मैं दिखा देता हूँ. ये env नाम का फोल्डर होता है, स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होता है. इस स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे सारे पैकेजेस होते हैं गाइस. जो भी आप एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करोगे, जैसे लैंचेन इंस्टॉल करोगे तो लैंचेन यहाँ जाके इंस्टॉल हो जाएगा. बट अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाते हैं तो फाइनली इंस्टॉल कहाँ होता है? जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है. जैसे मैं बता देता हूँ. जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर जाओगे ओपन फाइल लोकेशन,
और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि या के स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर होते हैं। तो ये पेरेंट पैकेज है। पेरेंट पैकेज का मतलब है कि जितनी बार आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पूरा का पूरा पैकेज आपके पास आएगा ही आएगा। बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जो पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करना है मैं ग्लोबल में इंस्टॉल नहीं करता हूँ, वर्चुअल नॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, तो हम आइडियली इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है कि जो भी पैकेज आपको ज़रूरत है जिस प्रोजेक्ट के लिए, उतनी ही चीज़ें आपको इंस्टॉल करे उस प्रोजेक्ट के लिए। आपको सारे पैकेजेस ग्लोबल में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करते ही जो भी जिस नाम से आपने बनाया है उस नाम से आपका यहाँ पे env दिखने लगेगा। उसके बाद सेट है गाइस, आपका वर्किंग फोल्डर रेडी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम एक फोल्डर बना लेते हैं दैट इज कॉल्ड चैट मॉडल। तो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि सबसे पहले एआई फॉर एवरीवन में चले गए और सबसे पहले हम बनाते हैं चैट मॉडल। ओके, तो चैट मॉडल हमने बना लिया। अब इस चैट मॉडल फोल्डर को हम कहाँ खोलेंगे? अपने VS कोड में। तो VS कोड आपका इंस्टॉल होना चाहिए। VS कोड आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इस क्लास के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर क्या गाइस हम करेंगे, यहाँ पर हम चैट मॉडल के पास जाएंगे, CD चैट मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी फोल्डर में खाली है। अब इसी को हम क्या करेंगे, कोड डॉट डॉट लिख देंगे ताकि हमारा ये VS कोड में ओपन हो जाए। इस तरीके से गाइस हमारा VS कोड में ओपन हो गया। अब गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैट मॉडल में ये फोल्डर खाली है। अगर आप चाहें तो ये बाकी फोल्डर ना दिखे तो आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप सीधे चैट मॉडल में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं AI फॉर एवरीवन में जाता हूँ और यहाँ चैट मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, ये फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोल्डर खाली दिखने लगा है। अब इसी फोल्डर में हमें अपना चैट मॉडल बनाना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको पाइथन फाइल बनानी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं दैट इज Q&A, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हो, कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो और आपको आंसर मिल जाए .py। ठीक है, ये हमने बना लिया। तो आपको तो कोड पता होगा गाइस, हम कोड क्या लिखते हैं। पहला लाइन है फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर चेन अंडरस्कोर grok और import chat grok। अब गाइज आप बोलोगे कि सर आपने पैकेज तो इंस्टॉल किया नहीं। तो गाइज पैकेज हम ऐसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। जिस भी पैकेज की ज़रूरत होगी हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम है requirements.txt। तो पाइथन की इंडस्ट्री ये बोलती है कि जो भी आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट है आप requirement.txt के अंदर लिख दें, ताकि हम आपको एक कमांड बताएंगे जिससे सारा का सारा पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा, जो जो पैकेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम कोड लिखेंगे, कोड को रन करेंगे और जो पैकेज का प्रॉब्लम बताएगा वो पैकेज आके requirement.txt में लिखते चल जाएंगे, ताकि हम एक बार requirement.txt को रन करेंगे और सारे पैकेजेस चल पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये था। उसके बाद बताएंगे कोई किसके बाद क्या लाइन होगा। ये तो हमारा हेडर हो गया। उसके बाद LLM एक वेरिएबल लेंगे सर, उसमें मॉडल API की टेम्पलेट ऐड करेंगे दैट विल प्रोवाइड। हाँ परफेक्ट, एक सेकंड मैं थोड़ा सा एक बार जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, वो पुराना वाला, ताकि मैं API की कॉपी कर लूँगा। एक सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, अब फिर फाइनली हम अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम गाइस यूज़र का इनपुट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा यूज़र क्वेश्चन। ओके, तो यूज़र क्वेश्चन लेके हम इनपुट फंक्शन ले लेंगे। इनपुट फंक्शन का मतलब होता है यूज़र से कुछ पूछना। ठीक है, प्लीज टेल मी द क्वेश्चन। ओके, और फिर क्या करेंगे, ये यूज़र क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे। दैट्स इट गाइस, हमारा कोड रेडी है। अब इसको रन कैसे करना है गाइस, बहुत ही आसान है रन करने का। ठीक है,
रन करने का तरीका है, या तो आप VS कोड के अंदर भी रन कर सकते हो, ठीक है, या आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट से दिखा देता हूँ, फिर मैं VS कोड से भी दिखा दूंगा। मान लो आपका कमांड प्रॉम्प्ट बंद है, मान लो सब कुछ बंद है, ठीक है, आपने कोड लिख लिया, ठीक है, तो आप चलाओगे कैसे? आप यहाँ गए, आपका ENV देखना पड़ेगा कहाँ पर है, उस ENV पे जाके CMD ओपन करेंगे। CMD ओपन करने के बाद गाइस फिर क्या करेंगे, आप ENV को एक्टिवेट करेंगे, env/script/activate.bat। एक्टिवेट हो गया, फिर आप फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपका कोडिंग है, चैट मॉडल, फिर आप चेक करेंगे कि आपका फाइल यहाँ पर है, फिर इसको रन करने की कोशिश करेंगे, python qna.py। जैसे ही आप रन करेंगे गाइस, ये एरर है, इस एरर को बताएंगे, इस एरर का मतलब क्या होता है कोई भी? सर वो फ्रेमवर्क डाउन इंस्टॉल नहीं है तो उसको फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो लैंचन ग्रॉक है इसको कॉपी करके, अब इसका देखो कभी कभी क्या होता है, यही नाम होता है, कभी कभी दूसरा नाम भी होता है, तो एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे कि ये जो है कि इसका नाम क्या होगा? मैंने बताया था पहले बार भी, ठीक है, कि आपको क्या करना है, जो भी एरर आ रहा है उसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे पिप लिख दीजिए और इस एरर को पेस्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा सेम नाम है कि अलग नाम है। तो यहाँ पर सेम नाम है, तो इसका मतलब है हम इस मॉड्यूल को कॉपी करेंगे और अपने VS कोड में आएंगे और requirement.txt में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो हम जो भी पैकेज कभी मिसिंग होगा तो requirement.txt में पेस्ट कर देंगे। अब हमें requirement.txt को चलाना पड़ेगा ताकि पैकेज इंस्टॉल हो जाए। तो गाइस इसको पहले क्लियर कर लेंगे CLS से। अब हम चलाएंगे कैसे गाइस, python -m pip install -r and then requirement.txt। जैसे ही आप रन करोगे requirement.txt वो इंस्टॉल होने लगा। देखा, हमने कोई पैकेज का नाम नहीं लिया, हमने बस वहां पे डाल दिया और ऑटोमेटिकली रन होने लगा। अब रन हो गया, तो फिर फाइनली हम क्लियर कर लेंगे विंडो और फिर हम क्या करेंगे, रन करने की कोशिश करेंगे python qna.py। तो जैसे ही आप रन करोगे उसको पैकेज मिल जाएगा, पैकेज मिल जाने के बाद फिर वो रन होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, प्लीज टेल मी द क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा हुआ था। हम में लिखते हैं हु इज द PM ऑफ इंडिया और रन करेंगे और फाइनली हमें आंसर मिल गया, यू कैन सी, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, जुपिटर नोटबुक से हटके हम पाइथन की तरफ आए। क्यों गाइस? क्योंकि हमें ये चीज हमें करना पड़ता है ताकि अल्टीमेटली आप कोडिंग लिख पाओ। एक सेकंड, हेलो, सर एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में आता हूँ आपको, ठीक है सर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पाइथन को रन किया और फिर फाइनली जो फाइल थी वो फाइल को रन किया और हमें आंसर मिल गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? फिर से मैं एक बार स्टेप बता देता हूँ आपको। हमने क्या किया, फोल्डर बनाया AI फॉर एवरीवन के अंदर। एक सबसे पहले हमने वर्चुअल नोड बनाया। वर्चुअल नोड बनाने के बाद आपको दोबारा वर्चुअल नोड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले वर्चुअल नोड बनाया, कौन सा कमांड था हमारा गाइस, बताएंगे? कोई बताएगा मुझे कमांड क्या था वर्चुअल नोड बनाने का? env/script/active.bat। देखो थोड़ा सा गलत है, पाइथन पाइथन -m, -m VNV स्पेस ENV। हाँ सॉरी माइनस, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, ये क्रिएट करता है वर्चुअल क्रिएट इन्वायरमेंट, करता है। ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करते हैं, env/script ENV स्क्रिप्ट/activate.bat।
एक्टिवेट डॉट बैट, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद फिर फाइनली एक्टिवेट हो गया। फिर जो भी आपको रन करना है पाइथन फाइल आप रन कर लो। या तो क्या करना होगा, आप जब पाइथन फाइल रन करोगे तो जो भी फाइल का नाम होगा आपको क्या लिखना है, पाइथन और फाइल का नाम। फाइल का नाम हमारा क्या था इस समय, qna.py, तो qna.py की। और अगर कोई पैकेज क्या होगा, पैकेज का एरर आएगा तो क्या करेंगे हम, पीसी की हेल्प से उसको डाउनलोड कर लेंगे। हाँ उस पैकेज नेम को पहले कहाँ लिखेंगे, इन द फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में। और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, फिर कौन सा कमांड लिखेंगे, पाइथन -m पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल -r देन -r रिक्वायरमेंट्स डॉट रिक्वायरमेंट। टीएक्सटी। सो पहले हम उस पैकेज का लिखेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद फिर इंस्टॉल कर लेंगे। और जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर दोबारा क्या चला लेंगे, पाइथन फाइल को, इसको दोबारा रन कर लेंगे। क्लियर हुआ गाइस आप लोग। तो इस तरीके से हमने आज लोकल सेटअप किया कि हमें गूगल कोलैब पे नहीं जा सकते क्योंकि हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे कनेक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए गाइस हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रुप में ये पॉइंटर्स भेज भी देता हूँ जो मैंने अभी लिखा है। अभी तक किसी को प्रॉब्लम तो बताओ। क्लियर है स्टेप्स आप लोगों को। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करो और मेरे को बताओ फिर। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप ये एग्जीक्यूट हो गया है, ये चैट मॉडल बन जाएगा, आपके पास बहुत सारे कोड है। कौन कौन से कोड है आप लोगों के पास गाइस, कौन कौन से कोड है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो VS कोड पे। पहला Q&A था, दूसरा क्या है आप लोगों के पास, कम ऑन गाइस। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन कुछ तो बोलो। पहला पाइथन फाइल हमने बनाया चैट मॉडल का, और कौन से प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो ऑलरेडी हमने गूगल कोलैब पे किया हुआ है। प्रीति मैम, विकास, विवेक, अंकित, विकास, कुमार। सर हमने जैसे प्रोवाइडर अलग लिया था, फिर फ्रेमवर्क बहुत अलग लिया बढ़िया। था। तो यहाँ पर आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप Q&A कर सकते हो किसकी हेल्प से, गूगल के मॉडल से। ठीक है, तो गूगल चैट मॉडल दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा। तीसरा बोलो, तीसरा क्या हो जाएगा। तीसरा सर ओपन एआई वाला भी था एक। ओपन एआई तो हमने कर लिया, और चैट ग्रॉक वाला कर लिया, और गूगल वाला कर लिया। फिर इसलिए इसी तरीके से ओपन एआई भी कर सकते हो। उसके बाद क्या था, जेमिनाई था सर। जेमिनाई तो कर लिया ना, यही तो है जेमिनाई गूगल का। अच्छा जेमिनाई ओपन एआई ओके। इसके बाद सर सिस्टम फॉर्मेट बहुत ह्यूमन बढ़िया, फॉर्मेट नहीं उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट सॉरी। ठीक है, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड ह्यूमन यूजर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट। ठीक यूजर है, प्रॉम्प्ट, डॉट प्रॉम्प्ट। py। अब नेक्स्ट बताओ गाइस, लास्ट एआई ठीक है प्रॉम्प्ट। सर। जो एआई प्रॉम्प्ट में क्या था, मेमोरी। सो सर गाइज मेमोरी। ये सारी चीज़ें आपको कल होना चाहिए। ये मैं आप लोग का सारा कोड मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो ट्राई करना कि अगर आप ये 2 लाइनें लिख चुके हो तो आप कोशिश करो कि आप जब दूसरे फाइल की कोडिंग करोगे तो ये लिखना ना पड़े, आप इस फाइल में से आप उसको उठा लो। ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ऑलरेडी मैंने गूगल कोलैब पे आपको गूगल का चैट मॉडल, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट और मेमोरी मैं सब बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पे भी जाओगे, आप अगर आपको गूगल कोलैब नहीं पता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आप डे 1 डे 2 में चैट मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोलैब में। उसी तरीके से जेमिनाई का गूगल कोलैब है, उसी तरीके से सिस्टम प्रॉम्प्ट का कोलैब है, और एआई प्रॉम्प्ट का कोलैब है। तो ये सारे कोलैब को ओपन करके आपको लोकल पे पाइथन फाइल में आपको चलाना है और मुझे बताना है आपने कैसे चलाया। तब हम जाके रेडी हो पाएंगे रैक के लिए। ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और दुनिया रैक कर रही है, मैं तुमको बता रहा हूँ।
80% लोग रैग से पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको रैग आ गया तो आप चंद मिनटों में रैग बना के आप चार्ट मॉडल बना के आप बेच सकते हो मार्केट में। क्लियर है गाइस? ओके, कोई क्वेश्चन है गाइस? आप बताएं, एनी क्वेश्चन? प्रीति मैम, विकास, विवेक, अंकित, विकास, ब्यूटी। ओके गाइस, नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? यस नो तो बोलो, मेरे मोटिवेशन के लिए मजा ही नहीं आएगा मुझे। ओके, एनीवेज गाइस, श्योर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।